मैम सर आई थिंक ज्वाइन कर चुके हैं। कर लिया सर ने ज्वाइन? अच्छा रविंदर, Yes, ma'am. हाँ रविंदर लाइव कर दो फिर शुरू कर देते हैं। Just give me 1 minute, ma'am. ओके ओके। बाजनाइ शुरू कर दे तखन ने विनीता बाजि लिअ। अभी बाजि रहल छी। आबि जेतै अपने। करियौ नहि ने गुड मॉर्निंग सर। कए दियौ। गुड मॉर्निंग। हाँ मास्क पहन रखा है। क्यों आज क्यों पहन रखा है? घर मैसेज तो देना है ना। अच्छा मैसेज हाँ तो हाँ बच्चों को देना। जरूरी है। हाँ जी हाँ जी। रविंदर कैन वी स्टार्ट? मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। हाँ जी हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। Ma'am, we may start now. Okay, so we are starting then. Good morning, everyone. I, Dr. पहले Vinita तो pledge Tuli, लेंगे ना। welcome you all. Good morning, everyone. I, Dr. Vinita Tuli, welcome you all to the webinar and pledge-taking ceremony on the occasion of the National Unity Day, organized under the aegis of the IQAC of Atmaram Sanatan Dharm College, in collaboration with NSS of ARSD College. It gives me immense pleasure to welcome Mr. S.C. Jha, who needs no introduction and who retired as an associate professor from the Department of Political Science of Atmaram Sanatan Dharm College. We are really glad, sir, that you took our time for us and our students to speak on the occasion of National Unity Day. I would also like to thank the NSS Program Officer, Dr. Anjani Kumar Singh, who has organized this webinar for us. As you all know, the National Unity Day or Rashtriya Ekta Divas is celebrated in India on 31st October. It was introduced by the Government of India from the year 2014. The day is celebrated to mark the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, also called the Iron Man of India, and who unified our country. Let us start the program by taking a pledge to mark the Rashtriya Ekta Divas. Ravinder, can we have the screen? मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Thank you, everyone. Now I hand over to Dr. Anjani Kumar Singh, who is the Program Officer of NSS, for further proceedings. Thank you, ma'am. First of all, I
I thank the principal sir to give the opportunity to organize this program with the collaboration with IQSC. From behalf of NSS, I would like to welcome our today's speaker, Professor S.P. Jha, who has served our college for long year back. So I request Professor Jha to continue a lecture on topic. Not sure about the topic on the occasion of National Unity Day. So sir, please sir, I welcome you. I'll hand over to sir. Please sir. सर आवाज आ रही है? Yeah. Sir, please unmute yourself, sir. अच्छा, Yes. ठीक है यार, जी आवाज sir. आ रही है? जी sir. Fine, sir. आदरणीय प्रिंसिपल साहब, जो किसी कारणवश शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, विनीता, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर अंजनी, मेरे सभी सहयोगी दोस्तों और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्यारे बच्चों, यदि मैं कहूं कि एक तरह से मेरी घर वापसी है तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि करीब 2.5 साल पहले रिटायर होने के बाद जो बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हैं उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा। जुलाई 1918 में बच्चों आपने ज्वाइन किया था और मैं जनवरी में अवकाश प्राप्त हो गया था। तो मेरे लिए आपसे जुड़ना बड़े सौभाग्य की बात है, और वो भी इस पावन अवसर पे। इसे मैं पावन अवसर इसलिए कहता हूं कि ये न सिर्फ सरदार पटेल की 145वीं जयंती है, बल्कि यदि मैं कहूं वे आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 1871 में जब जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ था तो जर्मनी के एकीकरण का काम बिस्मार्क ने किया था, और वही जिम्मेवारी सरदार पटेल के कंधे पर आ गई थी। देश की आजादी के बाद, देश के विभाजन के बाद कितनी विपरीत परिस्थितियां उस वक्त थीं, इसका अंदाजा बच्चों ना तो आप लगा सकते हैं ना हम लगा सकते हैं, कि हम उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। या तो अपने पूर्वजों से सुना है उन दिनों के बारे में, या फिर किताबों में पढ़ा है, और नहीं तो फिल्मों में जिस तरह से उसका चित्रण किया गया है उससे हमें उस युग की जानकारी मिलती है। मैं विपरीत परिस्थितियां इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लंबी अवधि तक गुलाम रहने के बाद जब आजादी हमारा दरवाजा खटखटा रहा था, उस वक्त ऐसी परिस्थिति बन गई थी, आर्थिक रूप से हम तबाह थे ही, सामाजिक रूप से हम इस तरह से बिखर गए थे, जिसके लिए काफी हद तक हम ब्रिटिश हुकूमत को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। जाने से पहले जिस तरह का भारत उन्हें मिला था 18वीं शताब्दी में, वैसा ही भारत छोड़कर वे यहां से जाने को तैयार थे। टुकड़ों में उन्होंने हमें बांट दिया था। कैबिनेट मिशन से पहले की बात करना मैं ठीक नहीं समझता हूं। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, उसके प्रस्ताव हमें स्वीकार्य नहीं थे। मुस्लिम लीग की गतिविधियां मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बहुत ही
नकारात्मक हो रही थी दिए हुए परिस्थितियों के मुताबिक, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने अलग राज्य की मांग रख चुका था 1940 में ही, टू नेशन थियरी के नाम से जिसे हम जानते हैं। उनका यह मानना था कि हिंदू और मुस्लिम ये दो राष्ट्र हैं और इन दोनों को अपना अलग अलग राज्य मिलना चाहिए। सच्चाई से ये बहुत दूर था, ये बात सच्चाई के करीब नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सह पर कहिए या अपनी अंदरूनी परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थीं जिसकी वजह से उनकी इस बात को बल मिल रहा था। और ऐसे हालात में देश को जोड़कर रखना एक बहुत बड़ी समस्या थी। डायरेक्ट एक्शन डे की मांग और यह की शुरुआत जो जिन्होंने की थी, मुस्लिम लीग ने किया था, देश में के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे और अंतरिम सरकार तो बन गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग उसमें शामिल होने से मना कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा की जिम्मेवारी, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधे पर थी। बहुत ही, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं कहूं कि सच्चे अर्थों में एक कर्म योगी थे, जिनको अपने कर्तव्य के सामने और कुछ नहीं दिखता था। वे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस, वकालत, बहुत बड़े वकील थे, बहुत बढ़िया कमाते थे, लेकिन उसको छोड़कर गांधी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में वो जुड़ गए थे और पूरी तरह से गांधीवादी बन गए थे, जिनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी गांधी ने 1928 के बारडोली आंदोलन के बाद। गुजरात से आए थे, गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात की मिट्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका मस्तक इतना ऊंचा था कि पूरे देश की चिंता उनके अंदर थी। 1948 और 50 का जो दौर था, जो बहुत ही कठिन दौर था भारतीय इतिहास का, हम एक देश के रूप में पूरी तरह से पैदा भी हो पाएंगे कि नहीं, सशक्त हो पाएंगे कि नहीं, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। और इन परिस्थितियों में नेहरू, पटेल और गोपालाचारी संभाली थी और विभिन्न तरह की भूमिकाएं सरदार पटेल ने निभाई थी। जाहिर है हमें सरदार पटेल की योगदान पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और वो भी इस दौर में जब हम देश आजाद हुआ था और हम अपने लिए संविधान बना रहे थे, और सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने थी वह थी 562 देसी रियासतों का देश में विलय। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि आजादी से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था। दो तरह की प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर थी। कुछ तो ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें संयुक्त प्रांत, जो आज का यूपी है, बिहार था, उड़ीसा था, बंगाल था, सॉरी बीच में बाधा आ गई, बंगाल था, कई प्रांत थे जहां पर अंग्रेजों की प्रत्यक्ष हुकूमत थी, और दूसरे देसी रियासतें थी, जिसमें सबसे बड़ा हैदराबाद था, जहां पर की अलग तरह की हुकूमत चलती थी। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन वहां भी चल रहा था,
लेकिन उतना मजबूत नहीं था जितना कि ब्रिटिश प्रांतों में था। अंग्रेजों ने जाने से पहले न केवल देश का विभाजन किया, उन्होंने 562 या उससे कुछ ज्यादा होंगे, 562 के करीब देशी रियासतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये 3 जून 1947 के माउंटबेटन अवार्ड का हिस्सा था। उन्हें ये छूट दी गई या तो भारत में शामिल हो जाए अधिराज्य में, या पाकिस्तानी अधिराज्य में शामिल हो जाए डोमिनियन में, या फिर वो स्वतंत्र रह सकते हैं। और ऐसे समय में यदि हम उन राज्यों को अपने साथ नहीं जोड़ लेते, देशी रियासतों को, उन्हें राज्य कहा जाता था, इधर हमें प्रांत कहा जाता था, यदि हम उन्हें नहीं जोड़ पाते तो हम एक मजबूत देश नहीं बन सकते थे। और ये जिम्मेवारी पूरी तरह से आ गई थी बल्कि गांधी ने खुद ये बात कही थी सरदार पटेल को कि सरदार, ये काम तुम ही कर सकते हो और बाकी किसी के वश का ये काम नहीं है। ये जिम्मेवारी गांधी ने सरदार पटेल को सौंपी थी। हालांकि सरदार पटेल से कई बातों पर उनका विरोध भी होता था, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन ये जिम्मेवारी गांधी ने पूरे तौर पर सरदार पटेल को दी थी और सरदार पटेल ने ये जिम्मेवारी बीरा अपने ऊपर लिया। और इसमें उनके लिए सबसे बड़े सहायक जो थे वो थे वीपी मेनन, एक सिविल सर्वेंट थे और बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पर थे। वीपी मेनन उनके दाहिने हाथ थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने देशी रियासतों को भारत में जोड़ने का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हिंदी में इसकी नहीं कर पा रहा हूं, कि भारत अधिराज्य में शामिल होने का दस्तावेज कह लो। एक्सेशन भारतीय अधिराज्य में शामिल होने का एक दस्तावेज था, जिनमें उन शर्तों की चर्चा होती थी जिस पर ये देशी रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार इनको होना था। 15 अगस्त 1947 की सीमा रखी गई सरदार पटेल के द्वारा और ये तय हुआ कि सारी देशी रियासतों को भारत में शामिल होना चाहिए उस तारीख तक। ऐसा करने के लिए बड़ी बुद्धिमानी के संग और कूटनीति के साथ सरदार पटेल ने साम, दान, दंड, भेद, इन सब का इस्तेमाल किया और ये सुनिश्चित किया कि 15 अगस्त 1947 तक सारी देशी रियासतें भारत के साथ जुड़ जाएं। और ऐसा हुआ भी। सिर्फ 3 अपवाद रह गए, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। इन तीनों को शामिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बारी बारी में इनके बारे में चर्चा करूंगा। जहां तक कश्मीर की बात है, महाराजा हरि सिंह वहां के राजा थे और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करने से मना कर दिया था। सरदार पटेल तत्काल भारतीय फौज कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नेहरू, राजगोपालाचारी, शायद माउंटबेटन भी, वो लोग इस पक्ष में नहीं थे। और इसी बीच सितंबर 1947 में कबीलाइयों के द्वारा पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। हम पूरी तरह इस आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरह की अफरा तफरी का माहौल था। महाराजा हरि सिंह खुद श्रीनगर से भागकर जम्मू चले आए थे और जब उन्होंने देखा कि परिस्थिति प्रतिकूल हो रही है तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। भारत अधिराज्य में वो शामिल हो गए। और तब भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों से फौजियों को श्रीनगर उतारना शुरू किया और पाकिस्तानी हमले को उन्होंने नाकाम कर दिया।
उन्हें पीछे धकेल दिया और ये तय हो गया कि अब कश्मीर हमारा हिस्सा होगा। बहुत तरह की कूटनीतिक गतिविधियां भी हो रही थी। नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहते थे, जिसका कि अभी अभी गठन हुआ था 1945 में। सरदार पटेल ने उनको इसके लिए मना किया था। ये हमारा आपसी मामला है, हम खुद निपट लेंगे इसको, और ऐसा करना आवश्यक नहीं है। तत्परता के संग पटेल ने पठानकोट से श्रीनगर तक का राजमार्ग 6 महीने के अंदर तैयार करवा दिया, जिससे कि फौजों की आवाजाही हो सके। और कश्मीर को बचाने में जो हिस्सा उनके कब्जे में चला गया, उसकी बात हम ना करें। कश्मीर को बचाने में हम सफल हुए थे। और आज यदि कश्मीर हमारा मस्तक है, भारत का अभिन्न अंग है, काफी हद तक इसका श्रेय सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता, समझदारी और उनके कूटनीति को जाता है। इस बीच और कुछ समस्याएं आ रही थी। जैसे विभाजन के समय में भारत ने यह वादा किया था कि पाकिस्तान जो एक नया अधिराज्य था, उससे 55 करोड़ रुपए भारत देगा। ये देने के लिए हम प्रतिबद्ध थे। पटेल ये राशि देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उनका ये कहना था कि यदि ये राशि हम उनको देते हैं तो उसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करेंगे। किंतु गांधी के आमरण अनशन पर जाने के बाद ऐसी परिस्थितियां हुई। गांधी बहुत ही कमजोर हो गए थे उन दिनों, और पटेल नहीं चाहते थे कि उनको कोई ऐसी घटना घट जाए जिसका उनके ऊपर तोहमत आ जाए। इस तरह के दबाव में आकर उन्होंने वो राशि अंत में गांधी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने ये रिलीज कर दिया था। ये हुई जम्मू और कश्मीर की बात। जूनागढ़ के राजा भी, जूनागढ़ आपको बता दूं कि गुजरात के कोस्ट पे है, बिल्कुल समुद्र के किनारे, अरब सागर के पास। शासक वहां के मुसलमान थे, लेकिन 80% आबादी हिंदुओं की थी। लेकिन शासक ने ये तय कर लिया था कि वो स्वतंत्र रहेगा, बल्कि पाकिस्तान में शामिल होने के लिए भी वो तैयार था। पटेल को ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि आखिर जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा था, उनका गृह राज्य था। और सबसे बड़ी बात थी कि सोमनाथ मंदिर, जो बाद में विवाद का भी विषय बना, मैं जरूरत पड़ेगी तो उसकी भी चर्चा करूंगा, जिस मंदिर को ढा दिया था मोहम्मद गजनी ने बहुत पहले और लूटपाट की थी वहां, वो सोमनाथ मंदिर भी जूनागढ़ में ही पड़ता था। तो सरदार पटेल का एक तरह से भावनात्मक लगाव था गुजरात के साथ, खास तौर पर, और सोमनाथ मंदिर के साथ। उन्होंने तय कर लिया, उन्होंने धमकी दी, वही जो मैंने आपको सामदान दंडभेद, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि राजा को भागना पड़ा पाकिस्तान। कहते हैं कि जब वो भाग रहे थे, वहां का राजा जब भाग रहा था वहां से, बहुत सारी रानियां थी उसके पास, एक रानी को भूल गया ले जाना। ये ऐसी किंवदंती है। इसके बाद बात आई हैदराबाद की। हैदराबाद सबसे शक्तिशाली देशी रियासत था। आधुनिक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, इतने बड़े हिस्से पे उनका कब्जा था। और बहुत ही कट्टर किस्म का वहां का निजाम था, जो किसी भी हालत में भारत से जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। यदि हैदराबाद शामिल नहीं होता, हम एक कम दुर्बल राष्ट्र रह जाते, और ये सरदार पटेल को कतई मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि सख्ती से इनके साथ निपटा जाए। उन्होंने बुलाया भी था वहां से,
उनका जो वजीर था उससे बात करने के लिए, उसने एक नहीं मानी। संयोगवश नेहरू उन दिनों यूरोप के यात्रा पर थे और सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री होने के नाते एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने हैदराबाद फौज भेजी, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, और वहां हमला करके और उन्होंने उन्हें परास्त किया और हैदराबाद को मिला लिया भारत के साथ। काफी लोग इसके खिलाफ भी थे, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प सरदार को नहीं सूझा। उन्होंने ये किया। हालांकि हैदराबाद के विलय के बाद उन्होंने वहां का जो निजाम था उसे वहां का जो सेरिमोनियल हेड कहते हैं, टिटुलर हेड बना के रखा। इन देशी रियासतों को भारत में जोड़ने के समय सिर्फ ये नहीं था जो मैंने कहा साम दान दंड भेद। उन्होंने इन राजाओं को आश्वस्त किया पूरी तरह से कि आपका जो नुकसान होगा भारत में इसके शामिल होने की वजह से, उसके बदले आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को भारत सरकार प्रीवी पर्स देती रहेगी। आपके खर्चे में कोई कमी नहीं आएगी, आपको खर्च के लिए पैसा हम देंगे। इस तरह से जो काम सरदार पटेल ने किया था, जिसका श्रेय पूरी तरह से उनको जाना चाहिए, और वीपी मेनन को जो चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स थे, ये काबिले तारीफ है। और इसी वजह से शायद उन्हें जर्मनी का या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये रही प्रिंसली स्टेट्स की बात, उनके इंटीग्रेशन की बात, एकता की बात जो उन्होंने स्थापित की देश में, जिसकी वजह से आज हम एकता दिवस मना रहे हैं। उनकी दूसरी भूमिका जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी वह था पार्टीशन। भारत के विभाजन के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई थी उसको काबू करने की। आपको पता होगा कि इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मुसलमानों का भारत से पाकिस्तान की ओर जाना और पाकिस्तान छोड़कर मुसलमानों का, हिंदुओं का और सिखों का भारत की ओर आना, इतना बड़ा विस्थापन इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, और शायद इतना बड़ा रक्तपात भी। कहते हैं 5 से 10 लाख लोग इसमें मारे गए थे। और ऐसी परिस्थिति में एक तरफ देश की आंतरिक व्यवस्था को संभालना, दूसरी तरफ रिफ्यूजी की समस्या, जो शरणार्थी आ रहे थे उनको उनके पुनर्वास की समस्या, तीसरी तरफ जो बढ़ता हुआ आवेश था लोगों के बीच, उसको कम करना, शांत करना मामूली काम नहीं था, साधारण आदमी के वश की ही थी। लेकिन सरदार पटेल, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एक गलतफहमी लोगों को है कि पार्टीशन के लिए नेहरू जिम्मेवार थे। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इतिहास का छात्र नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जब पार्टीशन की योजना आई थी तो उसको सबसे ज्यादा विरोध गांधी ने किया था और सबसे पहले स्वीकार पटेल ने किया था। ये नहीं कि उनको देश से प्रेम नहीं था, जो माहौल बन गया था देश में, जो हिंसक घटनाएं घट रही थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उन्हें इस बात का अंदेशा था कि भारत में कहीं सिविल वॉर शुरू ना हो जाए। उस सिविल वॉर को रोकने के लिए, ये कीमत चुकाने के लिए वो तैयार थे, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने कांग्रेस को इसके लिए राजी भी किया। और एक बार जब कांग्रेस ने इसकी सहमति दे दी, उसके बाद पार्टीशन काउंसिल जो बनी थी, कि किस तरह से जो मोडालिटीज तय होनी थी, इसका भी जिम्मा उनके ऊपर आया था। और यहाँ फिर वीपी मेनन ने उनका साथ दिया था। जिन्ना अड़े हुए थे कि पूरा पंजाब, जो मुस्लिम बहुल राज्य प्रांत हैं, वो हमें मिलना चाहिए, और उस नाते वो पूरा पंजाब और पूरा बंगाल हड़पना चाहता था जिन्ना। वीपी मेनन ने उनको सलाह दी, जो सरदार ने मान लिया, कि इन दोनों राज्य प्रांतों का विभाजन होना चाहिए।
पश्चिमी पंजाब जो मुस्लिम बहुल है वो पाकिस्तान में चला जाए और पूर्वी पंजाब भारत के साथ रहेगा। उसी तरह पूर्वी बंगाल ईस्ट पाकिस्तान के नाम से चला जाए और पश्चिमी बंगाल जो हिंदू बहुल है वो हमारे पास रहेगा। और इसके लिए जिन्ना को राजी होना पड़ा। इस तरह बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने बचा लिया था। रिफ्यूजी की जहां तक समस्या थी या भारतीय मुसलमानों के बीच जो असुरक्षा की भावना थी उसको उन्होंने बहुत भली भांति टैकल किया। उसको दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया जो दरगाह है वहां पर बहुत सारे मुसलमान इकट्ठा थे। उन्हें असुरक्षा की भावना उनके अंदर थी। सरदार पटेल खुद वहां पर गए, उन्हें आश्वस्त किया और पुलिस बल तैनात किया, उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त उन्होंने किया। तब तक खबर आई कि जो अमृतसर में जो वहां से सिख और हिंदू आ रहे थे वो जो कहानियां सुना रहे थे उससे वहां के हिंदू और सिख भड़क गए थे और भारत की ओर से जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे उन पर हमला करने की तैयारी हो रही थी। सरदार पटेल अमृतसर पहुंचे, लोगों से बात की, नेताओं से बात की, उन्हें समझाया बुझाया और जब वो आने लगे तो कहा उनकी गाड़ी को करीब 2 लाख शरणार्थियों ने घेर लिया था जो पाकिस्तान से आए थे। उन 2 लाख शरणार्थियों को भी उन्होंने संबोधित किया, उन्हें आश्वस्त किया और वहां के लोगों से उन्होंने ये एक तरह से वचन लिया कि किसी भी तरह का रक्तपात वो नहीं करेंगे और इस तरह काफी हद तक हिंसा को रोकने में वे सफल हुए थे। दूसरी तरफ जहां तक इस बंगाल का सवाल है, पूर्वी सीमा का सवाल है, बड़े पैमाने पर ईस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा आ रहे थे। लगभग 8 लाख रिफ्यूजी हमारे तरफ आ गए थे पाकिस्तानी एट्रोसिटीज की वजह से। जिस तरह पाकिस्तानी वहां पर कर रहे थे उससे डर के करीब 8 लाख रिफ्यूजी आ गए थे और ये बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे पास साधन नहीं था इतने लोगों को बसाने का, इतने लोगों को रोजगार देने का। ऐसे में नेहरू और लियाकत पैक्ट हुआ था। लियाकत अली प्रधानमंत्री थे वहां के, इस खिलाफ भी सरदार पटेल थे लेकिन उन्हें भी इस समस्या का पर भी काफी हद तक काबू उन्होंने कर लिया। ये देखते हुए कि पुलिस बल खुद पक्षपात रहा है और उस पर भरोसा काफी हद तक नहीं किया जा सकता था, सरदार पटेल ने फौज का इस्तेमाल किया और उस फौज में ज्यादातर दक्षिण भारत के रेजिमेंट्स को बुलाया गया था ताकि वो नॉन पार्टीजन होकर बिना पक्षपात के कानून व्यवस्था कायम करने में मदद करे। इस तरह इतनी बर्बादी के बाद भी हालात को काबू में लाने में सरदार पटेल की भूमिका जो थी गृह मंत्री के रूप में वो सराहनीय है और हम उसे भूल नहीं सकते। ये दूसरा पहलू था उनका, पार्टीशन की परिस्थितियों पर काबू पाना। तीसरी बात जो सरदार पटेल के बारे में मैं करना चाहूंगा वह है संविधान निर्माण के बारे में। बच्चों, संविधान के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन संविधान ये समझ लीजिए कि संविधान सर्वोच्च कानून होता है। हमारी व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है और चूंकि हमने लोकतंत्र अपनाया है, संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, इसीलिए इस संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति का शासन नहीं होता। इसमें शासन होता है कानून का, रूल ऑफ लॉ। और वही संविधान किस तरह हमारी शासन व्यवस्था चलेगी ये बनाने का काम हमारे संविधान निर्माताओं पर आया था। संविधान सभा का गठन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था।
अमेरिकी संविधान के बारे में कहते हैं, जब 1780 के दशक में वो बन रहा था, जो अभी भी चल रहा है 200 सालों के बाद, उस संविधान के बारे में कहते हैं निर्माताओं के बारे में कि वो डेमी गॉड्स थे, अर्ध देवता थे। इतनी बारीकी से, इतनी सोच समझ बूझ के साथ उन्होंने संविधान बनाया था कि आज भी उनके यहाँ वो चल रहा है। अपने संविधान निर्माताओं के बारे में भी मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या समझ बूझ थी उनकी। आपको पता है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन संविधान के विभिन्न पहलुओं की जो बात थी उसके लिए अलग अलग समिति बनी थी और उस समिति के एक अध्यक्ष होते थे जो उस हिस्से पर काम करते थे। सरदार पटेल 3 समितियों के अध्यक्ष थे। एक तो अल्पसंख्यकों की समस्या, अल्पसंख्यकों के लिए किस तरह की व्यवस्था संविधान में होगी, दूसरा आदिवासियों के बारे में, और जो दूर दराज के क्षेत्र थे उनका कैसे हम प्रशासन करेंगे, इस समिति के वो अध्यक्ष थे। दूसरी समिति जिसके वो अध्यक्ष थे वह था बहुत ही महत्वपूर्ण समिति, जिसके बदौलत हम अपने को एक लोकतंत्र कहते हैं, वह था मौलिक अधिकारों की समिति। और तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान की। मैं अभी तक राज्य इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि राज्य अभी नहीं कहलाते थे, अभी भी प्रांत ही कहलाते थे। प्रांतीय संविधान कैसा होगा, ये भी जिम्मेवारी सरदार पटेल ने अपने ऊपर ली थी। और आपको बता दूं कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर जो अभी भी बहुत तरह के मतभेद होते रहते हैं, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राज्यपाल की क्या भूमिका होगी संवैधानिक व्यवस्था में, ये पूरी तरह से सरदार पटेल ने देखा था। और उन्होंने ये सुझाया था कि नहीं, राज्यपाल के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होगी। वास्तविक शक्ति जो होगी वो होगी चुने हुए मंत्रिमंडल के पास, और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान होंगे, जो व्यवस्था अभी तक हमारी चली आ रही है। इस तरह उन्होंने संविधान निर्माण में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। फंडामेंटल राइट्स, मैं आपको एक चीज यहाँ बतलाना चाहूंगा एक डाइग्रेशन के तौर पर, कि लोग कहते हैं कि नेहरू और पटेल में बहुत ज्यादा बनती नहीं थी। काफी हद तक सच है, वैचारिक मतभेद थे उनमें, मैं इससे इनकार नहीं करता। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा अंत में। पता नहीं मेरे पास कितना समय है, जब आप अंजनी रोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। जो संविधान वैचारिक मतभेद थे दोनों में, नेहरू कभी कभी इन्हें सांप्रदायिक कहते थे कि आपको हिंदुओं के प्रति आपकी सहानुभूति है, इसीलिए उनको सांप्रदायिक कहा करते थे। सरदार पटेल भी कहते थे कि आप तो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, मुसलमानों के तुष्टिकरण की बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद चाहे उन पर कोई भी चार्ज लगाया जाए, आप पाएंगे कि अल्पसंख्यकों के लिए, याद रखिएगा जब मैं अल्पसंख्यक कहता हूं तो सिर्फ आप उसको धर्म के आधार पर मत देखिएगा। अल्पसंख्यक कहते हैं हमारे दिमाग में मुसलमान आ जाते हैं, नहीं, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पारसी हो। अल्पसंख्यक शैक्षिक भी होता है। अल्पसंख्यक किसी भी तरह का हो सकता है। भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं। इन सभी अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अध्याय ही नहीं है संविधान में, बल्कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत उन्हें अभूतपूर्व शक्तियां दी गई हैं, अभूतपूर्व अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म के आधार पर, और शैक्षणिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात धारा 29 और 30 में की गई है। तो ये सब के सूत्रधार हम सरदार पटेल को मान सकते हैं। उन्होंने ही इसका प्रारूप तैयार किया था। इसलिए उन्हें एक भारत, संयुक्त भारत उनका सपना था।
न कि एक विशेष संप्रदाय का भारत। मेजॉरिटेरियनिज्म जिसे हम कहते हैं वो इसके पक्ष में नहीं थे। सबके लिए एक भारत का सपना उन्होंने संजो रखा था और यही उनका व्यक्तित्व था जिसकी वजह से आप पाएंगे कि अंग्रेजों ने जो एक विघटनकारी तत्व भारत में लागू किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट, 1909 के मॉडल सुधार अधिनियम के द्वारा उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया था, जहां से सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा होगा, किसी भी पार्टी का हो, और मुसलमान ही उनको वोट देंगे और मुसलमान अपना प्रतिनिधि अलग से चुनेंगे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट शायद ही पार्टीशन का कारण बना था। जब संविधान निर्माण की बात आई तब हुआ कि इसका क्या होगा। सरदार पटेल अपनी बुद्धिमता समझबूझ के द्वारा मुस्लिम नेताओं से बात की और उन्हें पृथक जो प्रतिनिधित्व था सेपरेट इलेक्टोरेट उसे समाप्त करने के लिए राजी कर लिया था। इसका श्रेय भी और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ लिया। उन्होंने मुख्य धारा में इनको जोड़ने का श्रेय फिर हम सरदार पटेल को दे सकते हैं। अब बात आती है जो सरदार पटेल को लौह पुरुष बनाता है, जो अंतिम बात मैं करना चाहूंगा और फिर समसामयिक से भी उसको जोड़ने का प्रयास करूंगा। वह था भारतीय प्रशासन। जाहिर है प्रशासन की बागडोर उनके हाथ में थी गृह मंत्री होने के नाते। इंडियन सिविल सर्विस जो अंग्रेजों की विरासत थी उसे समाप्त करना था। वैसे भी स्वतंत्र भारत के लिए जहां अब हमारे सामने नई चुनौतियां थी, आईसीएस उसके लिए उपयुक्त नहीं था। आपको बताया मैंने किस तरह देश का विघटन होते होते बचा था। इतनी विविधताएं हमारे देश में हैं, इतनी देशी रियासतों को जोड़ा गया था। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से राज्यों या प्रांतों के हाथ में सौंप दी जाए, ये देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए सरदार पटेल का जो एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर योगदान, वह था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस का गठन। ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, उन्हें फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। इन पदाधिकारियों, इसमें जो पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, परीक्षा संघीय लोक सेवा आयोग करता है, वही अनुशंसा करता है, नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है और शुरू में इनको स्टेट कैडर दे दिया जाता है। आप बिहार कैडर के हैं, आप उड़ीसा कैडर के हैं, आप तमिलनाडु कैडर के हैं। ये उन राज्यों में जाकर अपनी सेवा देते हैं। प्रशासनिक कार्य आईएएस देखता है, कानून व्यवस्था का काम आईपीएस देखता है, लेकिन ये होते हैं एम्प्लॉई हमारे गृह मंत्रालय के। और कुछ साल की सेवाएं राज्यों में करने के बाद उन्हें केंद्र भी डिप्यूटेशन पर बुलाया जाता है और उनके जो अनुभव है अपने विभिन्न राज्यों में काम करने का, उन अनुभवों का लाभ उठाने के लिए नीति निर्धारण में भी उन्हें शामिल किया जाता है। और भारत को जोड़ने वाले जो तत्व हैं स्वतंत्र भारत में, वो एक बहुत बड़ा है ऑल इंडिया सर्विस। और इस ऑल इंडिया सर्विस को संवैधानिक दर्जा प्रदान कराया सरदार पटेल ने। संविधान में इसका जिक्र है, धारा 309, 310, 311, 312, और उन्हें पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखने के लिए उन्होंने प्रावधान दिए थे, बनाए थे संविधान में। स्टील फ्रेम इसे कहा जाता है। सरदार पटेल ने, या इस भारत की जो ऑल इंडिया सर्विस है, उसे स्टील फ्रेम, इस्पात का ढांचा कहा गया है। राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखने के लिए उन्होंने न्यूट्रलिटी का सिद्धांत यहाँ पर लागू किया था। ये बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का था, सिविल सर्विस का गठन जो उन्होंने किया था। और उस सिविल सर्विस को उन्होंने
भारत स्वतंत्र भारत के विकास में किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से जो नीति निर्धारण केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर होता है उसको बिल्कुल जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेवारी इनके हाथों में सौंपी गई थी। तो ये सरदार पटेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। अब सरदार पटेल के बारे में कोई भी चर्चा थोड़ी सी अधूरी रह जाती है, या हो सकता है आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं हों, उसको दूर करने के लिए मैं इस बात को छेड़ता हूं, और वो है गांधी, नेहरू और सरदार पटेल, इन तीनों के पारस्परिक संबंध। गांधी और नेहरू, सरदार पटेल, इन तीनों में बहुत ही अच्छे संबंध थे। हम मानते हैं कि कुछ विरोध, जब इतने बड़े व्यक्तित्व थे ये लोग, तो आपसी विरोध स्वाभाविक था, उसको हम नहीं रोक सकते हैं, वो तो होना है। लेकिन किस तरह से उस विरोध को वो काबू कर लेते थे, आपस में उसे निपटा लेते थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, नेहरू की बात यदि करें तो नेहरू को 3 बातों का श्रेय है आजादी के बाद। एक तो सांप्रदायिक सद्भाव, रिलीजियस हार्मनी, ये सांप्रदायिक सद्भाव की जिम्मेदारी का श्रेय हम नेहरू को दे सकते हैं। सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक मूल्यों से प्रेरित, पाश्चात्य मूल्यों से प्रेरित, ये भी कहूं तो गलत नहीं है। उनका दूसरा जो योगदान था वह था स्वतंत्र विदेश नीति। तृतीय विश्व युद्ध के बाद आप जानते हैं कि शीत युद्ध का काल शुरू हुआ था, जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया था। अब पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था। आज लग रहा था ये तीसरे युद्ध की तैयारी शुरू हो गई, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। नेहरू ने दूरदर्शिता के संग दूसरे इजिप्ट के नासिर हों, मार्शल टीटो हों युगोस्लाविया के, इन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। वे जितने नवोदित राष्ट्र थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आजाद हुए थे, उनको मिलाकर उन्होंने एक गुट बनाया, जिसे गुट निरपेक्ष कहा जाता था, और इन्होंने तय किया कि हम दोनों बड़ी ताकतों से समान दूरी रखेंगे और जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है वो हम करेंगे। तो स्वतंत्र विदेश नीति, ये भी नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था। और तीसरा योगदान जो नेहरू का है वह है टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल इंडिया। आधुनिक भारत का निर्माण खास करके तकनीक, विज्ञान के क्षेत्र में वो नेहरू को जाता है। नेहरू ने ही उसकी नींव रखी थी, आगे बढ़ाया था। IITs, एटॉमिक रिसर्च, जितनी सारी चीजें, स्पेस रिसर्च, इस सब का नींव नेहरू ने खुद रखा था। पटेल के पक्ष में भी 3 बातें कही जा सकती हैं। एक तो प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतों का विलय, एक अखंड भारत का निर्माण, ये श्रेय पटेल को जाता है। दूसरा, मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रशासनिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण, ये श्रेय पटेल को जाता है। और तीसरी बात जो पटेल को के पक्ष में जाती है वो ये कि वो क्रॉस पार्टी कंसेंसस, विभिन्न दलों के बीच आम सहमति बनाने में, खास करके संविधान के लिए, संविधान के विभिन्न तत्वों को, विभिन्न विशेषताओं के बारे में सर्वसम्मति बनाने में विभिन्न दलों के बीच, उसमें पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब पटेल और नेहरू में कुछ विवाद बढ़ता था तो पटेल ने कई बार गांधी को जाकर कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, प्रशासन सही नहीं चल सकता यदि उसके 2 प्रमुख जो स्तंभ हैं वो आपस में टकराए।
लेकिन गांधी उन्हें समझाते थे कि ऐसा मत करो, देश को तुम्हारी बहुत जरूरत है और अपनी जिम्मेवारी से तुम मुकर नहीं सकते हो। कहा जाता है कि नेहरू के प्रति उनको थोड़ा ज्यादा उनकी कमजोरी थी, रही होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पटेल को भी समझा बुझाकर अपने देश के योगदान में, देश की प्रगति में पटेल के योगदान को सराहते हुए गांधी ने उन्हें नेहरू से अलग नहीं होने दिया। एक रोचक बात आपको बताता हूं, वो ये, गांधी की अंतिम मुलाकात जो जिस व्यक्ति से हुई थी 30 जून 1948 में उनकी हत्या से पहले, वो व्यक्ति कोई और नहीं, सरदार पटेल थे। सरदार पटेल गांधी के पास ये रिक्वेस्ट लेकर गए थे कि उन्हें उनकी जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाए। पार्टी की कब मसला हो, विभिन्न तरह के मतभेद हो जाया करते थे नेहरू से, तो उन्होंने सरदार गांधी से ये कहने के लिए गए थे कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं सरकार छोड़ना चाहता हूं। किंतु गांधी ने उन्हें समझाया और दोनों में मेल करवाया, नेहरू और पटेल में, कि आप दोनों की जरूरत देश की है, देश को है, आप दोनों देश के लिए उतने ही उपयोगी हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसी मीटिंग के बाद कहते हैं कि प्रार्थना सभा के लिए गांधी निकले और उन्हें उनकी हत्या कर दी गई थी। पटेल इतने संवेदनशील व्यक्ति थे कि इसके लिए, पटेल गांधी की हत्या के लिए उन्होंने अपने आप को दोषी माना। उन पर आक्षेप भी, कई तरह का आक्षेप भी लगाए गए कि आपने गांधी की रक्षा नहीं की, गृह मंत्री होने के नाते ये आपकी जिम्मेवारी थी। और उसके बाद सरदार पटेल टूट गए थे पूरी तरह से। 2 महीने तक उन्हें एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ। वो तो बेटी मनी बहन साथ में थी, सचिव लोग थे, जान उनकी बच गई थी, लेकिन उसके बाद उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया और अंततः 15 दिसंबर 1950 को भारत का ये महान सपूत अपनी कार्यलीला समाप्त करके सदगति को प्राप्त हुआ। सरदार पटेल के इस योगदान के लिए पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। मैं मानता हूं उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दरअसल सरदार पटेल को तो भारत रत्न देशी रियासतों के विलय के बाद ही मिल जाना चाहिए था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। 1991 में आकर उन्हें भारत रत्न दिया गया। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं। इस ऐसी महान विभूति के लिए ये पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता है। उनका जो योगदान है, आज हम स्वतंत्र भारत में यदि सांस ले रहे हैं, यहाँ की मिट्टी पानी से हमारी परवरिश हो रही है, हमारी प्रगति हो रही है। क्या हमारी आर्थिक स्थिति थी 1948 में, 47 में, और आज हम जहां पहुंचे हैं, उसकी बुनियाद इन्हीं लोगों ने रखी थी और देश इनके प्रति कृतज्ञ है। और मैं श्रद्धा पूर्वक ऐसी महान विभूति को नमन करता हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल से मैं 50 मिनट बोल चुका हूं, जो हमारे क्लास लेने का टाइम होता है। इससे ज्यादा यदि आपको वर्तमान समय के लिए कुछ बात पूछनी हो तो मैं सवाल का जवाब दे सकता हूं, यदि इसकी इजाजत इस व्यवस्था में हो। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, धन्यवाद विनीता, धन्यवाद अंजनी और बच्चों। हमें बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ। कोरोना की मार है, रूबरू तो नहीं हो सका, लेकिन आपके साथ अपने विचार शेयर करके, आपके साथ जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
और ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे तो अभी तो मैं रिटायर हुआ ही नहीं, अभी भी मैं कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और भावनात्मक लगाव तो कॉलेज के साथ है, हमेशा रहेगा। आप लोग अच्छा करो, आगे बढ़ो, देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझो। देश आपका है, हमारा नहीं है। जितनी युवा पीढ़ी के लोग हैं, देश का के आप कर्णधार हैं। हाँ, जाते जाते एक बात मैं बच्चों आपको जरूर कहूंगा, यदि आपने एक फिल्म नहीं देखी है तो देख लेना। जब्बार पटेल की एक फिल्म है सरदार, वल्लभ भाई पटेल पर ही बनाई गई है। परेश रावल ने वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई है। कभी मौका लगे तो वो फिल्म जरूर देखना बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। भारत माता की जय। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने एक मोटिवेशनल और इस तरह से टॉक देने के लिए और सरदार पटेल के एस्पेक्ट को बताने के लिए। सर आप परमिशन दें तो एक दो क्वेश्चंस ले लूं सबसे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बच्चों को ये इतना पता होना चाहिए केवल कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, पॉलिटिकल साइंस का हूँ। तो हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछेंगे तो मैं माफी मांगूंगा। हाँ, राजनीति से संबंधित सवालों का जवाब जरूर दूं, कोशिश करूंगा, प्रसन्नता होगी। बिल्कुल सवाल लूंगा मैं। बोलो बच्चों को अपना परिचय दे दें, क्लास बता दें। पहला सवाल सर मेरा ही है सर, बहुत चूंकि सवाल ये है सर कि जब पाकिस्तान ने की आर्मी ने कबायलियों के रूप में सर 1947 में पार्टीशन के टाइम अटैक किया और महाराजा हरि सिंह भारत सरकार के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए। और जब इंडियन आर्मी ने, जैसे आपने बताया कि दोबारा पाकिस्तान पे अटैक किया, तो सर जो पीओके है उस समय क्यों नहीं लिया गया? आज वो हमारे नासूर बना हुआ है, क्यों छोड़ दिया गया वो? मतलब वो मेरा अभी तक नहीं समझ में आता है कि जब इंडियन आर्मी ने अटैक किया और पाकिस्तानी आर्मी पीछे हटी, तो पूरी में पाकिस्तान अपनी पूरा अंदर क्यों नहीं गया? मतलब वो जो एक एरिया देखते होंगे सर, अभी भी हम इंडियन मैप में पूरा दिखाते हैं कि लगता है हमारा सर कटा हुआ है। जी जी, सर कटा हुआ है। दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारे सर का ताज है, ताज तो कटा हुआ है सर। तो फिर उसका अभी तक लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया कि जब इंडियन आर्मी ने अटैक किया तो ले लेना चाहिए था, क्यों छोड़ा? बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने इस सवाल पर, इस मुद्दे पर जानबूझकर बात नहीं की थी, लेकिन अब जब आपने पूछा है तो इसका जवाब देना लाजिमी बनता है। देखिए, जब भारतीय सेना ने उनको खदेड़ना शुरू किया था, काफी हद तक खदेड़ दिया था, और पटेल तो चाहते थे कि हम पूरा कश्मीर अपना हथिया लें, उस पर कब्जा कर लें, और ऐसा वो कर सकते थे। दरअसल यहाँ चूक पंडित जवाहरलाल नेहरू से हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आदर्शवादी व्यक्ति थे और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि विश्व में उनकी क्या छवि है, उस छवि को लेकर वो बड़े चिंतित रहा करते थे। तो ऐसा न लगे कि भारत एग्रेसर है, आक्रामक है, इसलिए उन्होंने बिना सरदार पटेल से राय मशविरा किए और ऑल इंडिया रेडियो से अपना संदेश प्रसारित करने के लिए, उस वक्त तो मोबाइल होता नहीं था, जब उनको खबर आई कि सरदार पटेल को कि वो जा रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो पर अपना संदेश देने, तो उन्होंने अपने सचिव को दौड़ाया ऑल इंडिया रेडियो। इसलिए मैंने जब्बार पटेल के फिल्म की बात की थी, ये कहने के लिए कि आप प्लीज युद्ध विराम की घोषणा मत करिए, अभी हम सफलता पा रहे हैं, पूरा कश्मीर हम अपना वापस ले सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जब तक, उनका सचिव जब तक वहां पहुंचता ऑल इंडिया रेडियो, नेहरू अपना वक्तव्य दे चुके थे, युद्ध विराम की घोषणा कर चुके थे। और प्रधानमंत्री होने के नाते चूंकि ये काम वो कर चुके थे, तो सरदार पटेल पूरी तरह से बेबस और लाचार हो गए थे। और फिल्म में दिखलाया गया है, फिल्म ने सरदार पटेल ने ये बोला है कि जब यही शब्द वो इस्तेमाल करते हैं कि जवाहर अपने इस भूल के लिए पछताएगा, ये गलती हुई थी हमसे उस वक्त, ये नासूर, सच में ये नासूर है जो आज भी हमारा पीछा कर रहा है। ये खत्म हो सकता था यदि नेहरू ने सरदार पटेल को
खुली छूट दी होती। लेकिन मामला चूंकि विदेश मंत्रालय का भी था, प्रतिरक्षा के साथ साथ विदेश मंत्रालय का भी की हुई बात थी, तो सरदार पटेल यहाँ पर बेबस से हो गए थे, क्योंकि बिना सलाह मशविरा के ही नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। मेरे ख्याल से सवाल का जवाब मिल गया। जी 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 सर, मिल गया अंजनी? सर। एक जी जी मिल गया सर। एक बच्चा है सर, ललित तनवार। हाँ, उसका क्वेश्चन है सर कि क्या नेहरू सरदार को अपने से नीचे देखते थे, क्योंकि कांग्रेस में कभी भी उनको वो जगह नहीं दी गई जिसकी वो लिए डिजर्व करते थे। आपकी राय क्या है? मैं ये बताना चाहूंगा आपको, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल था ना, नेहरू मास लीडर थे। आम लोगों में नेहरू की पहुंच थी, पकड़ थी। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी पर पकड़ सरदार पटेल की ज्यादा थी। स्टेट लेवल के लीडर्स थे, वो उनका समर्थन सरदार पटेल को ज्यादा था। और पार्टी में उनका कद छोटा नहीं था। कभी भी नेहरू को परेशानी होती थी, क्योंकि पार्टी में नेहरू जो कुछ भी करना चाहते थे उनको दिक्कत होती थी सरदार पटेल की वजह से। लेकिन छोटे और बड़े की बात यहाँ थी ही नहीं। जैसे पहले राष्ट्रपति बनने की ही बात आई थी, तो सरदार पटेल ने, नेहरू चाहते थे कि राजगोपालाचारी प्रथम राष्ट्रपति बने। सरदार पटेल ने पूरी ताकत लगा दी थी पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, और वो राष्ट्रपति बने। उसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष के चुनने की बात आई थी, तो पुरुषोत्तम लाल टंडन कांग्रेस के तरफ से उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात थी। नेहरू को बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे, जो भी कारण रहा हो, और वो जेबी कृपलानी का उन्होंने पक्ष लिया था। लेकिन नेहरू हार गए थे और पुरुषोत्तम लाल टंडन बने कांग्रेस के अध्यक्ष। और इसके लिए भी इस बात का भी श्रेय सरदार पटेल को जाता है। इसलिए पार्टी में सरदार पटेल का कद ज्यादा बड़ा था बनिस्बत नेहरू के, जब तक वो जिंदा थे। उसके बाद की तो परिस्थितियां बदल गई थी। दोनों ही कद्दावर नेता थे, और ये कहना कि एक छोटा था और एक बड़ा था, ऐसा नहीं है। दोनों एक जैसे कद्दावर नेता थे। और पार्टी पर तो पकड़ मैं कहूंगा पटेल का शायद नेहरू से थोड़ा ज्यादा था। हाँ, आम लोगों में नेहरू ज्यादा लोकप्रिय थे, मास लीडर थे वो, लेकिन पार्टी में पकड़ नेहरू से ज्यादा सरदार पटेल की थी। और भी किसी के कोई क्वेश्चन है? एनीवन? अब सर 1 घंटे हो चुके सर, और अब लास्ट में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसका मतलब सर सभी लोग सेटिस्फाई हैं। और मैं वोट ऑफ थैंक्स की तरफ से प्रोसीड करता हूं। और मैं सर आपको फ्रॉम द होल ARSD, ऑन द बिहाफ ऑफ द NSS ARSD एंड फ्रॉम द इंटायर कॉलेज, आई वुड लाइक टू थैंक हेडी वोट ऑफ थैंक्स टू यू सर, कि आपको मतलब छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे हम लोगों ने बोला कि सर आप प्लीज हमारा एक प्रोग्राम है, आप आ जाइए सर, आपने तुरंत विदिन मिनट नहीं लगा सर, आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया सर। थैंक यू सो मच सर। और मेरा सर पर्सनल आपके साथ अटैचमेंट है सर। मेरे को याद आ रहा है कि जब मैंने 2016 में कॉलेज ज्वाइन किया था सर, मैं स्टाफ रूम में गया और आपने मेरा नाम लेके पुकारा। और रियली सर वो जो पर्सनल टच होता है ना, ऑलवेज आई फील लाइक ए फादर फिगर विथ यू। थैंक यू अंजनी, थैंक यू। मतलब दरअसल जी सर, आप के ऊपर, आप लोगों के कंधे पर ही कॉलेज की जिम्मेवारी छोड़ के मैं अवकाश प्राप्त करके और आनंद का जीवन जी रहा हूँ। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोग अपना पूरा योगदान कॉलेज के लिए कर रहे हो। अब मैं जहाँ कॉलेज को छोड़कर आया था उससे बहुत आगे आप लोग ले जा रहे हो कॉलेज को, थैंक यू। इसमें कोई शक ही नहीं है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना टाइम दिया हमारे लिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू।